Hi guys, this is Dhananjay here and I'm the CEO at Moksha. This is all about your career. Okay, this next 30 minutes is going to change probably your entire perspective about where to study and what are the options that we have. So I'm definitely going to give you insight into your multiple options because all of you who are listening to me, I'm sure they are between the age group of 18 to 24 or something of that sort. And in the next, your next decision is going to actually decide what you will be doing throughout your life. Correct? Eh? So it's an important decision. And what we are going to do is in the 5 simple steps in the next 30 minutes maximum, I'm going to tell you what are the things that you should be taking into considerations before you move into your career. Okay? There is a panel on your mobile or on your web where you can ask me questions and I can read them and I can answer you. Guys, before we start the whole webinar, I just want you to answer me one simple question. Just click on any one of the what is your next step in your career? Is it bachelor's or is it master's? So I'm sharing it with you. Around 43% of the students are bachelors, looking for bachelor's, and 57% of the students are looking for master's. Okay, perfectly all right. That's fantastic. So guys, we have a mix of both. I'm going to talk about Moksh for 2 minutes. मैं आपका इंडिया का जो स्टडी है उसका पैटर्न समझा दूंगा. We will try to plan your career in a better way and I'll give you an alternative of study in Europe. Okay, so these are the 5 things that we will talk about. About Moksh, we are the only study abroad company and career counseling company which is a public limited company listed on National Stock Exchange. Okay, you can buy our shares. People do that on a daily basis. We are there for 12 years and we have been doing this. We have interacted with more than 75,000 students online like this. A lot of people loved our idea, the way we work. So we have 2 divisions. Moksh16.com is all about career counseling and mokshacademy.com is all about teaching online. For any queries, you can simply send a WhatsApp and automatically a career assistant will be given to you and he or she will assist you throughout the planning to execution stage of your career. Okay. नॉर्मली हम लोग सोचते नहीं है कि मेरे करियर का प्लान करना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा, मास्टर्स तक का. इफ आई एम गेटिंग इनटू बैचलर्स देन I should not think only about bachelor's. I should think about masters. I should think about salary scale. I should think about demand of jobs and all those things. So normally क्या होता है, पापा ने बोला ये ले लो, बच्चे ने बोला ठीक है. 50% of the students take. या बच्चे ने बोला ये ले लेता हूँ, but he doesn't know the entrance exam क्या होता है, इंडिया में possibilities क्या है, actual options कितने रहते हैं, खर्चा कितना है, do they have the capability to pay for it. You are not considering so many things. Okay, मुझे artificial intelligence करना है, उसी में करना है, तो खत्म हो गया, बस वहीं से शुरू हो जाता है. Whether are you really good to become an engineer to get into artificial intelligence, nobody knows. Whether artificial intelligence will survive for more than 5 years, you don't know. Of course, it is a sunrise industry, so everybody knows. But lot of old, old age streams are getting out of the way, and new age streams are coming in demand. So you should plan your career accordingly to formulate your CV once you complete your educational career. तब तक आपका CV वैसा बनना चाहिए which becomes appealing for your first job to step into the real world. So right now you need to take a decision whether I want to study in India or I should study in Europe or any other country, but with a same budget as India. So given one thing, my budget is same. Can I have these options? Yes, you have. Whether you are in bachelor's or master's doesn't matter. You have these options. Okay. How to start up?
So simple. The career counseling app is available on Play Store. On Android, you can just download it. It's called Moksha Career Planner. And the moment you download, it will ask you what is the stream that you're looking for. Are you looking for bachelor's, master's, doctoral? What exactly do you want to do? Then it will give you all the options open. Okay, so it's that simple. You can start doing that. Download the app. Around 5,000 students careers we have actually changed after, so out of every 12th student, they simply changed their mind to follow our career plan. Okay, अराउंड 75,000 स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग दिया ऑनलाइन, ऐसे ही हाफ एन आवर इंटरेक्शन करके. यू कैन आस्क अस क्वेश्चंस, वी विल आंसर यू. You have a career assistant, they will give you the options, they will give you all kind of journeys, that you need to go through to reach where your dream destination or dream career that you have in your mind, and they will definitely take you. So ऐसे 5,000 लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, स्टूडेंट्स की लाइफ का पर्सपेक्टिव बदला, उनके लाइफ का एम बदल दिया, या तो एम को एनहांस किया, ऊपर लेके गए, and they are now right now in a different world altogether. So let's take फर्क क्या है. Let us take both the sides, India and Europe. फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ पैसों का है, अपॉर्चुनिटी का है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है. अगर मुझे शांति से टाइम पास करना है पर मैं सीरियस नहीं हूँ, if I'm not serious enough to make my life, okay, then I'll opt for a low class engineering, IT, non-tech roles. This is what the chart is giving, actual employability percentage of engineering graduates in different roles. What does it mean? So when you become an engineer in different types of things, like networking, like design engineer, like civil, like electrical, your employability, industry is expecting much more than a graduate who comes out of an engineering, and that is why your entry point is so low. As far as the money is concerned, more than 1 million engineers are coming out every year from India, from thousands of institutes. Not everybody can get into IITs, or not everybody can get into NIT. That is only kind of 10%. What about the rest of the 90%? आप किसी गांव में बैठे हो, कोल्हापुर में बैठे हो, वहां की एक छोटी सी कॉलेज में बैठ के आप इंजीनियर बनोगे, आगे क्या करोगे? आपका एम्प्लॉयबिलिटी, आप यू विल हैव अ टैग ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन बट अर्निंग मच लेस देन अ प्लम्बर, earning less than an electrician, because nowadays in bigger cities an electrician's visit will cost me around 500 rupees, but an engineer in a month, after working for the whole month, he doesn't get more than 18 to 20,000 rupees. So guys, एक स्किल है, एक एजुकेशन है, और एक ऐसा बंदा है जो अपना लाइफ का सही डिसीजन सही टाइम पे लेके सही स्किल और सही एजुकेशन रोल ले लेता है. So those people who are not educated but skilled, they also earn. Those people who are educated but they are not from the premier institutions, they are not able to get a job easily, or if they get the job, they are not into the domain in which they became an engineer. Main problem इधर इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयबिलिटी का इंजीनियरिंग के साथ में जुड़ा हुआ है. अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आप गूगल पे जा सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका करियर प्लान का सबसे पहला, द फर्स्ट स्टेप, अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस. आप टाइप करोगे, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, रिपोर्ट्स मिलेंगे. Only 11% of private engineering colleges graduates can get employed, are readily employable. Why Indian engineers are unemployed? 94% of the engineering graduates are not fit for hiring. These are all industry reports. क्या करोगे इसके बाद में? मैं बताता हूँ क्या करोगे. आप उसके बाद में जॉब नहीं मिलेगा तो आप फिर उसका
MBA करने निकलोगे, करेक्ट है? MBA में दूसरा 8-10 लाख रुपए डालोगे। सो ओवरऑल खर्चा इंजीनियरिंग के लिए वर्स्ट केस कॉलेज में भी आपका 6-7 लाख रुपया चला जाता है। आप सब कुछ ऐड करोगे, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, ट्यूशन फी, हॉस्टल, खाना पीना, रहना, 7-8 लाख रुपया। एम्प्लॉयबल बनने के लिए एडिशनल मास्टर्स डिग्री करोगे, उसके सामने वही इंजीनियर अगर आप यूरोप में बैठे हो तो उसका एवरेज सैलरी इज नॉट लेस देन 45 लाख रुपीज अ ईयर। पर पढ़ाई करने का खर्चा उतना ही है जितना आप इंडिया में करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सच ऑप्शंस आर अवेलेबल where you can get much better education quality in ranked universities. Lavish, it's not that your value of education is not there. The problem is, suppose if I am into IIT, suppose if I am from NIT, my employability and my salary scale is very different. Unfortunately, only 10% of the students are able to get into top-notch institutions. 90% of the students have to go for average or below average. That's a good question, Lavish. So it is not that there is no value, but how do you consider a value is how does it this degree helps you to build your career. Correct है Lavesh? So आप एक पैशन की वजह से सीखना चाहते हो, अलग चीज है। आप करियर बना के उसी में कमाना चाहते हो, एक अलग चीज है। बराबर है? हैव यू अंडरस्टूड लवेश? अगर करियर बनाना चाहते हो तो 90% लोगों का करियर का प्रॉब्लम डेफिनेटली हो रहा है इंडिया में। आपको चाहिए उतना, आपको, चलो लेट अस सी, कोई आर्ट से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई इंजीनियरिंग है, कोई साइंस है। लेट अस अंडरस्टैंड what is the breakup of students from various streams. सपोज आप बीएससी कर रहे हो, या क्या भविष्य है, बीएससी आईटी में हो, फिर भी कुछ ना कुछ आपके पास ऐसे कोर्सेज हैं जो आप इंडिया में करके अच्छी जगह सीख सकते हो। आर्ट्स वाले हो सकता है आप लोग क्रिएटिव वर्क में चले जाओगे। साइंस वाले सबसे ज्यादा पछताते हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत करते हैं बीएससी में, आगे कुछ दिखना नहीं है। एमएससी करूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, या एमएससी का पढ़ाई नहीं करना है, जो जॉब मिलेगा, because we ourselves are a public limited company. If somebody comes to our office and he has done a BSc, उसको हमको पता है हम क्या ऑफर करते हैं, और उसमें बेयरली एक हाथ से पैसा आता है, एक हाथ से घर में महीने के अंत में खत्म हो जाता है। अगर आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो तो कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। या तो आप एग्जाम को क्रैक करो, बट उसमें केक इतना है, खाने वाले बहुत हैं। चाहे आप होशियार भी हो, चाहे आप कैपेबल भी हो, बट जरूरी नहीं है कि वो केक खाने मिलेगा आपको इंडिया में, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। करेक्ट है? इजी एंड श्योर शॉर्ट रास्ता क्या है कि जिससे मेरी लाइफ बने, मैं डेवलप्ड कंट्री में जाऊं और उतना ही खर्चा और इन्वेस्टमेंट करूं फॉर माय पैशन ओरिएंटेड कोर्स, ताकि मेरा जो सैलरी है वो कम से कम 4-5 हजार तो हो यूरो। 4,000 यूरो मतलब उसमें 2 जीरो ऐड हो जाते हैं। अब खर्चा जो होता है वो 1,000 यूरो का है। आप थोड़ा सा गूगल कर लोगे, जो सेविंग है वो आपकी साल भर की सेविंग इंडिया में नहीं होती जो महीने में करते हो। तो चाहे आप ये कंपैरिजन चार्ट आपको दिया है, आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करो तो आपको समझ में आएगा। आप सीरियसली इसको प्लान करना चालू कर दोगे कि अब मुझे ग्लोबल सोचना पड़ेगा। वो डिग्री पूरे ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। कल जाके इंडिया में आओगे तो इंडिया में भी एक्सेप्ट, यू विल गेट मोर लिवरेज फॉर दैट डिग्री, बिकॉज people, you will be exposed to the world, you will have learned multiple language, you have much more caliber than passing out from a small college in India, from a small village or town or a city which has got no such big name as IIT or NIT। वो टैग लाइन नहीं लगा आपको। करेक्ट है? जॉब भी है तो आपका
पूरा का पूरा नजरिया बदल जाता है। जो जॉब है वो आपको सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप दुनिया में कहाँ भी काम कर सकते हो, क्योंकि वो डिग्री एक्सेप्टेबल है। आज यूरोपियन यूनियन ही इतना 27 कंट्री से बना है और वो डिग्री वैलिड होती है 27 कंट्री में, एक ही डिग्री होती है, एक ही क्रेडिट सिस्टम है। जो आप इटली में सीखते हो वही फ्रांस में सीखते हो, वही लातविया में सीखते हो, वही हंगेरी में सीखते हो। वहां पे कॉमन एजुकेशन सिस्टम है। सो एक्सेप्टेबिलिटी गेट्स ग्लोबल, और वही डिग्री इंडिया में भी वैलिड है। और फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में सीखे, आप उसके साथ में जर्मन लैंग्वेज सीख के आए, इंडिया में सबसे ज्यादा यूरोपियन जो कंपनीज है वो सारी जर्मन है। सपोज आप फ्रांस गए तो आप साथ में फ्रेंच सीख के आए, फ्रेंच की कितनी कंपनीज इंडिया में भी हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ ग्लोबल ही रहना है, अपने को इंडियन भी बनना है, बट वो कंपनी आपको तुरंत एक्सेप्ट करती है एट अ मच लार्जर स्केल, salary scales. So you grow faster, you grow faster in terms of career, you grow faster in terms of growth in your career, in your salary, in your lifestyle, in your quality of what you get. तो उससे क्या होता है कि अगर मैं 10 साल में 10 लाख बचाने वाला था तो मैं 3 साल में बचा लग सकता हूं, तो मैं 7 साल बचा लेता हूं मैं मेरे लाइफ के। करेक्ट है? हर्ष कुमार, there are courses in every country, Harsh. You don't only go for one country. Get your exposure for multiple countries and choose. That is the thing that we need to do. कोई भी चीज, कोई एक कंट्री के, फॉर एग्जांपल आपका बजट कितना है, आपका वहां पे कनाडा में आज की तारीख में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, जॉब अवेलेबल है तो क्या फिल्म मेकिंग और वीडियो क्रिएशन के जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है, अगर वो हैं तो क्या सैलरी मिल रही है। तो ऐसे आप एटलास लेके, आपको कनाडा अच्छा लगता है, मेरा फ्रेंड कनाडा गया है सर मुझे भी वहां जाना है, ऐसे डिसीजन नहीं लिया जाता। इसीलिए मोक्ष आपको गाइड करता है टू सिलेक्ट द राइट प्लेस। आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। ठीक है, आपके पास प्लान ए बी सी तैयार होना चाहिए। अगर करियर बनानी है तो आपके पास प्लान ए बी सी तैयार होना चाहिए। आपके स्क्रीन के ऊपर यू मस्ट बी एबल टू रीड इट। प्लान ये है, ए यही है कि इंडिया में बनो, बट अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से बनो, अदरवाइज नथिंग ensures your great career. Small AIT, IIM, एम्स, NITs, कैंपस इंटरव्यूज। आज अगर आप कैंपस इंटरव्यू देखोगे, देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर कैंपस, इन कैंपस इंटरव्यूज बहुत लोगों को जॉब मिलता है, बट वो मिलने के बाद में कितने को नहीं मिल रहा है वो भी देखो आप। तो unemployment for engineers is definitely a problem for science students, because India doesn't invest in R&D so much. The companies don't invest so much in R&D. That is why the science students are treated at the last category. और जैसे हमने देखा अभी हमारे अभी आज के सेशन में 75% स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं। उनका भविष्य क्या, क्या वो 10, 15, 20 हजार की सैलरी स्केल पे अपना करियर शुरू और अंत 25, 30 हजार पे करना चाहते हैं, या आप अपनी करियर, क्योंकि उसकी वैल्यू, साइंस, इंडिया के साइंस ग्रेजुएट्स की वैल्यू यूरोप में बहुत है। क्या आप उधर जाके अपनी लाइफ बना के पैसा कमा के आना चाहते हो? दीज आर समथिंग दैट यू विल नीड टू थिंक अबाउट। कितने लोग ऐसे हैं कि जो इंडियन कॉस्ट में यूरोप में पढ़ना चाहेंगे? चलो, लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो हियर इट इज, 67% of the students voted, 2/3 of the student voted कि भाई मुझे एक सेकेंड ना, मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना, आई विल थिंक ऑफ अब्रॉड। ठीक है, 1/3 of the students say sir maybe, I'm not sure about it. So this is the change in perspective that I was telling you in half an hour. There are 3 options in front of you. कॉस्ट आप मास्टर्स की करो या बैचलर की, इंडिया की ही करना है,
चैलेंज ये है अपने पास कि मेरे पास बजट कम है, ये सोच के चलना है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है, if you have lot of money, then plan C is there, but there are lot of problems also. UK has problem with issuance of post study visa, work visa. मतलब पढ़ाई करो, खर्चा करो, but वहां पे रह नहीं पाओगे. You have to find a job within the next 90 days, otherwise you have to go back to your country. कनाडा का अकोमोडेशन प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि उसका कॉस्ट डबल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का वीजा का जो रिडक्शन हो गया कि इतने ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं अभी, और यूएस में वीजा का रिजेक्शन बढ़ गया है। सो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज का गारंटी नहीं रहा कि आपका करियर बनेगा, और कॉस्ट ऑलमोस्ट इंडिया की कॉस्ट से 4 टाइम्स कॉस्ट है। यूरोप की कॉस्ट, ऐसे कंट्रीज हैं जो जिसकी डिग्री पूरे यूरोप में अवेलेबल है, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि इंडिया की कॉस्ट वाली है कंट्रीज, इंडिया से डबल कॉस्ट वाली हैं, और आप यही दो रेंज में से आता है। फॉर एग्जांपल आप लातविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया, हंगेरी, ये सब इंडिया की कॉस्ट में पढ़ाई देते हैं, और मैं इंक्लूडिंग लिविंग कॉस्ट बोल रहा हूं मैं आपको। एंड दिस इज प्रॉपर यूरोपियन यूनियन। आपका शेंगेन वीजा लगता है, वो वीजा लगा के आप 27 कंट्री में बिना किसी को पूछ के, जैसे हम महाराष्ट्र से गुजरात घूमते हैं वैसे आप लातविया से जर्मनी जा सकते हो, वही वीजा लेके, कुछ कोई चेकिंग नहीं है। आप वही डिग्री लेके, आप लातविया की डिग्री आप लेके जर्मनी में काम कर सकते हो, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज लातविया के अंदर सीख ली हो तो। आप पर जर्मनी में सीखना चाहोगे या आप फ्रांस में सीखना चाहोगे पढ़ाई करना, तो आपको कॉस्ट 2x पे जाएगी इंडिया की कॉस्ट से, या 1.5x पे जाएगी डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर आप इटली में जाओगे तो 100% स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम्स भी हैं। lot of people for hospitality, for tourism, for chef, for lot of things people go for Italy. आर्ट्स वाले बहुत जाते हैं इटली के अंदर, साइंस वाले बहुत जाते हैं फ्रांस और जर्मनी के लिए, इंजीनियरिंग वाले बहुत जाते हैं लातविया, लिथुएनिया, हंगेरी में। आपको स्पेशलिटी प्रोग्राम्स चाहिए, साउंड इंजीनियरिंग चाहिए, जैसे हमको अभी किसी ने पूछा, एक सेकेंड, मैं क्या सवाल था, वीडियो। तो अगर आप वीडियो, साउंड इंजीनियरिंग, फिल्म मेकिंग, अगर ये वाले प्रोग्राम हंगेरी में करते हो, सॉलिड उसका डिमांड भी है और खर्चा इंडिया जितना है। सो ऐसे वाले अगर आप सोच सकते हो प्रोग्राम्स, देखो शेंगेन कंट्रीज मतलब यूरोपियन यूनियन और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और इंडिया के अंदर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी में बहुत फर्क है। आपको अपने आप को पहले माइंड सेट करना पड़ेगा, अपना बजट सेट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। कंपेयर करो अपने ऑप्शंस, पेरेंट्स के साथ में बैठो, सीरियसली बात करो कि हाउ मच मनी डू यू थिंक आई वी कैन स्पेंड फॉर माय एजुकेशन, एंड एजुकेशन मतलब बैचलर प्लस मास्टर्स तक का करो प्लान। ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बैचलर हो जाऊंगा और काम कर लूंगा, उससे ये गलत होगा। you have to do masters because this is the time। भले आप बैचलर के बाद में 2 साल काम करो फिर मास्टर्स करो, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है, आपके स्पेशलाइजेशन की वैल्यू बढ़ते जा रही है। बिलो 10 lakhs वाले 43% है, 10 से 20 lakhs वाले 57% है। अब बिलो 10 lakhs वाले इंडिया में एडमिशन लेंगे, पूरा खर्चा करेंगे, बट रिटर्न कुछ नहीं आएगा। प्रॉब्लम है। 10 to 20 lakhs वाले इंडिया में खर्चा करेंगे तो एमबीए के साथ हो जाएगा, मास्टर्स तक हो जाएगा, और यही खर्चे में आप यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई करोगे। इतना सिंपल है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चाहिए तो मास्टर्स आपको 25-30 लाख के नीचे नहीं होता। वर्स्ट कॉलेज में बिलो एवरेज में 25 लाख का खर्चा पकड़ के चलो आप, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में। वैसे 40 लाख का एवरेज खर्चा पकड़ते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में। सो बेस्ड ऑन द बजट you will have to think what is suitable for you. 18% of the students from India who are bachelors, they study abroad, and 72% of the students who go abroad are at the master's level. But अगर
आप बैचलर लेवल से यूरोप जैसे कंट्री में चले जाते हो, यूरोप जैसे के कोई भी कंट्री में, इफ यू आर गोइंग देयर, what happens is there are rules, like if you study there in European Union for 5 years, you automatically get a permanent residency over there. So if you are a bachelor student and make your plan for studying bachelor plus masters in European country below the budget of 20 lakhs with complete education loan, by the time you come out, you have a job, you have a huge salary, and you can easily pay back that education loan. So there are lot of opportunities. It only needs a proper career planning. India, Europe या English speaking country, you have to think global. मुझे इंडिया में मेरे घर में रह के घर का खाना खा के वो अम्ब्रेला में पापा मम्मी के साथ में अंदर में बैठ के टेंशन फ्री होके जीना है, वो अलग एक इंडिया वाला रूट है। मुझे खुलेआम होके मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, वर्ल्ड दुनिया को एक्सप्लोर करना है, फेस करना है, सिचुएशंस को निभाना है। और मैं आई एम एन एक्सप्लोरर, आई वांट टू गेट एक्सपोज टू द वर्ल्ड, आई वांट टू स्टडी इन डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई वांट, बट मैं पैसा नहीं खर्चा करूंगा, पैसा उतना ही दूंगा जितना इंडिया में, पर मैं कमाऊंगा बहुत ज्यादा। अगर ये वाले हैं तो यूरोप है। अगर मेरे पापा के पास 30 40 50 लाख रुपया पड़ा है, मेरा एजुकेशन के लिए कोई सवाल नहीं आता है, जो भी होगा पढ़ाई करके वापस इंडिया भी आना पड़ा, वो पैसा भूल जाऊंगा, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। आई होप यू गॉट योर पिक्चर क्लियर in your mind. No, Lavesh, study level in India is harder, it is more difficult because we are ahead of them in study। हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, वो लोग हमारे से कम करते हैं, उनको शॉर्टकट और इजी रास्ता मिला है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। हमको डेवलप होना है, हम ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है, हम प्रजा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू रीच अ स्टेज इन लाइफ। वहां के लोगों से हम काफी होशियार, आपने देखा होगा मल्टीनेशनल कंपनी, यूएस की पकड़ लो, आप यूरोप की पकड़ लो, आपको यूएस का गूगल का सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, आप कोई भी कंपनी का, आप ट्विटर का कौन था, पराग अग्रवाल था, कहाँ पे भी इंडियन टॉप पे पहुंचता है क्योंकि वी आर मच मोर एजुकेटेड, स्किल्ड एंड दिमागू लोग, और हार्ड वर्किंग ऑल्सो। सो डर वो मत रखो कि डिफिकल्ट होगा, डर ये रखो कि मुझे क्या चाहिए और मुझे जो चाहिए क्या वो सफिशिएंट है एक अच्छी करियर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, सो यू कैन सी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पढ़ना, समझना, सोचना, एनालाइज करना और डिसाइड करना कि भाई व्हाट इज देयर फॉर माय लाइफ, मुझे क्या करना है। नेचुरली एवरीबडी नोज यूरोप इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, लैक्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल ट्रैवल देयर। वो लोग वेकेशन करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, मजे करते हैं। आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि यूरोप में इंडिया की ही कॉस्ट में अपनी करियर बना सकते हैं। आज वो जानकारी मिली। ठीक है, आपको ये नहीं पता था कि मैं भी यूरोप का भी परमानेंट रेसिडेंसी ले सकता हूँ। यूरोप में क्या सैलरी स्केल्स हैं वो आप गूगल करके पता कर लो, आपको पता ना हो तो। ठीक है, सो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा कि मुझे बनना क्या है और बनना कहाँ है। ठीक है, आज अगर यूरोप में पढ़ाई करता भी हूं तो फायदा क्या है, इंडिया में टेंशन लेके बैठे हो। Schengen visa allows you to travel to across European Union countries without any additional, so study, work and travel। आप 12th स्टैंडर्ड से बैचलर प्रोग्राम पूरा इंग्लिश में होता है, डिग्रीज पूरी वैलिड है यूरोप में, अक्रॉस द वर्ल्ड वैलिड है। आप ग्रेजुएट हो जाते हो, 18 महीने का एडिशनल वीजा देते हैं, भैया अभी काम करो, काम ढूंढो, आपको वापस अपने कंट्री में जा। जैसे यूके बोलता है 3 महीने में नहीं मिला वापस अपने कंट्री में आ जाओ, आप बोलोगे सर 50 लाख रुपया खर्चा किया मैंने पढ़ाई, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। आप वहां का ब्लू कार्ड ले सकते हो 21 मंथ्स ऑफ जॉब के बाद में, और क्या चाहिए आपको मेरे को बताओ। जैसे यूएस में ग्रीन कार्ड रहता है, यूके का अपना यूरोप का ब्लू कार्ड रहता है, यू बिकम ऑटोमेटिकली एलिजिबल, उसके बाद में वीजा की जरूरत नहीं, उसके बाद में आप फैमिली वहां पे डिपेंडेंट बना सकते हो, वहां का फ्री एजुकेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, फ्री हेल्थ केयर का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मतलब जितने भी फायदे हैं
वो सारे फायदे आप यूरोपियन कंट्री के उठा सकते हो, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन गिर रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनको लोगों की जरूरत है, हमारे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। दैट इज व्हाई दिस माइग्रेशन हैपेंस। अब वो माइग्रेट 7.5 लाख लोग करते हैं हर साल, पूरा इंडिया नहीं होता, क्योंकि हर आदमी नहीं समझता अपनी करियर को कैसे बनाना है। कितने आदमी तो यहाँ पे हो जाते हैं सेटल, अच्छी तरह हो जाते हैं, अच्छी जगह काम मिल जाता है। कितने लोगों को रास्ता नहीं मिलता, वो लोग प्लान नहीं कर पाते, किसी गाइड को नहीं मिले हैं। सो एंट्रेंस एग्जाम की नहीं जरूरत है, डेस्टिनेशन अफोर्डेबल है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हो 20 घंटा, उसी में अपना लिविंग कॉस्ट निकाल सकते हो। शेंगेन वीजा की गारंटी है। आप कोई भी 9 कंट्री में से एक चूज कर लो, करियर प्लानर ऐप को डाउनलोड करो सबसे पहले। जितने लोगों ने बोला कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन यूरोप, you must download this app, go through various courses that it offers, Europe offers, go through various universities, go through expenses for every university, speak to your assistant, आपको ये व्हाट्सएप कर दो या यहाँ पे फोन पे बात कर लो। Does it sound interesting to all of you guys? ये एक नया दिशा जो आप आज की तारीख में सोच रहे हो कि कब का सोच रहे हो आप, अगर मुझे यूरोप का करना है या इंडिया में मैं अपनी करियर बनाने की, आगे पढ़ाई करने की सोच रहा हूँ, then what is the intake that you are looking for? So I'm closing the poll now. 60% of the people say September 24, 40% of the students say March 25. Always remember, in March intake, not every university has got the intake, so your choices go slightly limited. You can also opt for September 25 if you want the full choice. कोई बैच नहीं होता, कोई बैच होता है, कोई इनटेक यूनिवर्सिटी में नहीं होता, सो वो कॉम्बिनेशन होता है पूरा. So those who are going for March 25, they need to be very sure about the batch availability. Otherwise, they will be pushed to September 25. Those who are going for September 24, their application should go in by month of May. अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कोर्स, अपना फ्यूचर, अपना कंट्री, अपना डेस्टिनेशन, अपना पैशन सब कुछ फ्रीज नहीं करोगे तो आपको फिर मार्च के बाद ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्च का एप्लीकेशन आपको चलता है सितंबर तक. यू जनरली नीड टू गिव 6 months फॉर द इजी स्मूथ एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, सब टिकटिंग, वहां पे पहुंचना, सब कुछ प्रोसेसिंग करवाना, वहां पे पोस्ट अराइवल सर्विस लेना. सो जिसको कोर्सेज में क्लैरिटी है वो डेफिनेटली दे कैन टॉक के व्हाट आर माय ऑप्शंस. दीज आर ऑल इन द यूरोपियन यूनियन offering you Schengen visa to study in the top ranked university in this country at the cost of India. Guys, this is the end of the entire thing. I have lot of more slides, but I think by now you would have understood the quality of education, English teaching programs, low tuition fee, accelerated career growth. We discussed everything: innovation centers, entrepreneurship, option to get a job, high salaries, living standard changes. Everything is different when it comes to Europe. Okay? What we will do for you? We will do your career counseling. We will help you select and guide your university. We will do your applications. We'll get your travel and visa. We'll ensure your accommodation booking. And once you arrive, we'll pick you up from the airport. We'll put you in the hostel or accommodation. We'll do end-to-end services. You can apply to 100 plus courses in 300 plus universities through one app, which is Mox Career Planner app. I hope you understood. The solution is there in front of you. It is waiting for you to take a call. What suits you the most? Correct? How many of you would like to actually get a personal counseling session now? You need a call from a
career assistant to discuss it further, to understand further all your options. Fantastic. So here you are. 67% want a call back from Moksh to understand how to better our career. 33% says no. Those who have said no will not get any calls, hopefully, because it's very difficult to scan through who has said no. But we will try not to call you. And if you get a call, just be courteous enough to tell that was मेरे को नहीं interest है. Don't call me again. That's it. Because they are making careers. I just want a feedback. वो last review होता है ना from all of you, and we will close the webinar unless you have some more questions. This is very important feedback for us to understand what more should we include in this. You are most welcome to give us the suggestions, because it's been going on and on for a long time, and we want to be sure that you are getting what you need. 100% people said excellent. I'm so thankful to all of you guys. Thank you guys, and see you sometime. Bye bye.